हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हमारा चैप्टर 19 कंप्लीट हो चुका है। आज हम करेंगे द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर एंड द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर with along with short answer type questions. Let us start with the keywords. Bill, a proposed law. बिल का मतलब है एक लॉ या कानून। बजट, बजट क्या होता है बेटा? द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इनकम और एक्सपेंडिचर की जो स्टेटमेंट है उसे हम कहते हैं बजट। डिस्क्रिमिनेशरी, समथिंग दैट डिपेंड्स ऑन वंस ऑन विल और चॉइस। डिस्क्रिमिनेशरी का मतलब है किसी व्यक्ति की अपनी इच्छा अनुसार जो चीज़ होती है, जैसे कि गवर्नर अपनी पावर का इस्तेमाल करके राष्ट्रपति शासन की मांग कर सकता है। लॉ, सर्टेन रूल्स और रेगुलेशंस। लॉ का मतलब है सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी फॉलोड वेयर whose violation will result in punishment। लॉ का मतलब है वो नियम और कानून जिनको पालन किया जाना ज़रूरी है और अगर कोई उनका पालन नहीं करता है तो उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस का मतलब है अ टेम्परेरी लॉ एनफोर्स्ड बाय द एग्जीक्यूटिव when the legislature is not in session. Ordinance means a temporary law enforced by the executive when the legislature is not in session। जब सेशन यानी कि जब सरकार नहीं होती है तो सरकार की गैर मौजूदगी के अंदर जो नियम और कानून होते हैं उसे ऑर्डिनेंस कहा जाता है। Let us start with tick the correct. Now we will do the book exercise. The governor of a state is appointed by Chief Minister, President of India, Prime Minister or the Vice President of India. The answer is Vice President of India. Which one of the following statement is incorrect about Vidhan Parishad? Its members are elected for 6 years. Its 2/3 member retire after every 2 years. It cannot be dissolved. Minimum age of the member is 25. तो इनमें से कौन सा सही नहीं है? The minimum age of 25 is not the correct answer. The maximum strength of a state legislative assembly can be maximum limit क्या है बेटा? 500 और मिनिमम क्या है? 60। लेकिन एक्सेप्शंस हैं, मिजोरम के अंदर केवल 40 मेंबर्स हैं। The union territory are directly administered by the governor, the state government, the chief minister or the union government, and the right answer is union government. Which one of the following is not a union territory? इनमें से कौन एक यूनियन टेरिटरी नहीं है? चंडीगढ़, दिल्ली, पुडुचेरी and Goa, and the right answer is Goa. In case of constitutional breakdown in a state, the dash rule is imposed. The president rule is imposed. Only 6 states in India have a Vidhan Parishad. The government at state level is called the state government. There are 28 states and 8 union territories in India. The member of Vidhan Sabha are elected by the dash directly. विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? पीपल। और विधान परिषद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो एमपीज का, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का चुनाव करते हैं। क्लियर है? ये हमारा हो गया है पार्ट ए एंड पार्ट बी। After this we will do the next part, that is part C.
द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ओनली ऑन द करंट कॉन्करेंट लिस्ट, ये फॉल्स है। स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों में ही डिसीजन ले सकती है। द गवर्नर अपॉइंट द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, ट्रू है ये। Delhi has an elected legislative assembly, that is also true. The विधान सभा is a permanent house, false है ये। विधान परिषद परमानेंट हाउस होता है। The term of each member of the legislative council is 6 years, true है ये। Next question answers part D. What is the minimum age to be the governor of a state? किसी स्टेट का गवर्नर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए? 35 is the minimum age to be the governor of a state. What is the minimum age to be the chief minister of a state? चीफ मिनिस्टर बनने के लिए कितनी एज हो सकती है? 25 is the minimum age to be the chief minister of a state. Next है बेटा, who presides over the meetings of legislative assembly? legislative assembly की मीटिंग्स को कौन प्रिसाइड्स करता है? स्पीकर presides over the meetings of legislative assembly. Next है, who act as a link between the governor and the council of ministers? We all know very well, the chief minister act as a link between the governor and the council of ministers. Who appoints the chief minister of a state? किसी भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर को कौन अपॉइंट करता है? पहली बात तो द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इज अपॉइंटेड एज अ चीफ मिनिस्टर। मेजोरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वही चीफ मिनिस्टर अपॉइंट होता है। तो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट। कल हम करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर, और अब आज ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सभी बच्चों ने आंसर्स कंप्लीट करने हैं और अपनी नोटबुक सेंड करनी है बेटा, ठीक है। ये हमारी रिवीजन चल रही है। इसके बाद आपके पास अगर काम पेंडिंग होगा तो आप खुद रिस्पॉन्सिबल होंगे, क्लियर है। इसलिए अच्छा है कि आप अपना काम अभी से पूरा कर लें। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉल।